Good morning, you're watching Hornbill TV's Morning Pulse. Union Home Minister Amit Shah is scheduled to address a mega public rally in Punjab's Moga on March 14th, in what is being seen as a significant political development ahead of the 2027 Punjab Assembly elections. According to top BJP sources, the rally may serve as a formal launch of the party's campaign in the state. Amit Shah is expected to address party workers, local leadership and supporters, outlining the political roadmap and strategy for the upcoming elections. Sources indicate that Kili Chahal village has been selected as the rally venue, from where the Home Minister may sound the bugle for the 2027 electoral battle. The location has reportedly been chosen with strategic considerations in mind. Moga is situated in Punjab's politically crucial Malwa region, which accounts for the largest share of assembly seats in the state and often plays a decisive role in determining the electoral outcome. Political observers note that strong performance in Malwa is essential for any party aiming to form a government in Punjab. Party leaders from across Punjab, along with senior state and national functionaries, are expected to attend the rally. The event is likely to focus on governance issues, development initiatives, law and order, and outreach to farmers, youth, and industry stakeholders. આપની અનન્ય પ્રેરણા અને ઉત્સાહવર્ધન માટે ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી આપનો. આજની આ તિરંગા યાત્રામાં જુદા જુદા વિભાગની પ્લાટૂન્સ, બેન્ડ્સ, ફાયરના જવાનો અને હજારોની સંખ્યામાં નગરજનો જોડાઈ રહ્યા છે. સમગ્ર પરેડની આગેવાની પરેડ કમાન્ડર ઈ ડિવિઝનના એસીપી વીણા દુધાત કરી રહ્યા છે, જેઓ હવે ફ્લેગ માર્ચ માટે અનુમતિ લેવા આગળ પધારશે. अनुमति प्राप्त થઈ ચૂકી છે અને હવે अनुरोध કરીશું માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી, માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીને કે ઝંડો બતાવીને આપ આ ભવ્ય વિરાટ તિરંગા યાત્રા રેલીને પ્રસ્થાન કરાવશો. બેન્ડના તાલે જવાનો પણ જોડાઈ રહ્યા છે. તિરંગા યાત્રામાં એસીપી શ્રી વીણા દુધાતના નેતૃત્વ નીચે તમામ પ્લાટૂનો મંચથી આગળ વધી અને તિરંગા યાત્રામાં. The Haryana Anti-Corruption Bureau has arrested 4 people in connection with the Rs 590 crore IDFC First Bank fraud, ACB Director General DG A.S. Chawla said here on Wednesday. Briefing news person Chawla said that the 4 accused included 2 of the bank's former employees and 2 private persons who own a partnership firm. Stating that the arrests were made Tuesday night as part of the ongoing investigation in the said fraud case, he said that the arrested persons were Ribhav Rishi, Abhay Kumar, Swati Singla and a brother Abhishek Singla. Swati is Abhay's wife. Rishi and Abhay were former employees of the bank, while Swati and Abhishek ran a firm, Swastik Desh Project. Stating that Rishi was the head of the bank's Sector 32 branch and quit the job about 6 months ago, and Abhay was the bank's relationship manager and left the job around August last year. Chawla said that both of them were the mastermind behind the fraud. The ACB DG further said that the accused transferred Rs 300 crore to the account of Swastik Desh Project, whose main owner was Swati Singla with 75% shares, while her brother Abhishek had remaining 25% shares of the firm. हमसे और क्योंकि पहला टारगेट जो था जी वो डिपार्टमेंटों से ज्यादा था, जो एक्यूज है कहीं वो ना भाग जाए, क्योंकि अगर हम डिपार्टमेंटों के चक्कर में चलते रहते और इधर से एक्यूज सरक जाता तो ज्यादा परेशानी हो जाती. सरकारी आदमी तो भाग नहीं सकता, वो मिल जाएगा हमारे को. आप कोई चीज कहना? अभी तक इन्वॉल्व पाया गया है या इनका अपना ही नेक्सस था? देखिए, अभी जांच बहुत शुरुआती दौर में है. ऐसा प्रतीत जरूर होता है कि कहीं ना कहीं कोई मिक्सअप जरूर होना चाहिए, लेकिन जब तक वो तसल्ली नहीं हो जाती और हम क्रॉस वेरीफाई नहीं करते, हम इसके बारे में इस समय पे टिप्पणी करना. मोडस ऑपरेंडी जी हमारे पास सामने आया है, कोई सुनता नहीं, वो इस समय बताना नहीं है, क्योंकि जो चीज आई है, बैंक अब सुबह 10 बजे खुले हैं, हमें वही चीज जो बताई गई है उसको पहले क्रॉस चेक करना होता है. तो वो क्रॉस चेक करके वो थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज होती हैं लीगल, बिकॉज दोपहर बाद इनको पेश भी करना पड़ेगा. कोर्ट हमारे को इसका रिमांड देगा. जिस कंपनी 556 करोड़ रुपए वापस आए जो सरकार ने बताया, लेकिन जो घोटाला जो बैंक ने कहा वो 590 करोड़ रुपए बता रही है, तो ये बीच का जो पैसा क्या है सर? कुछ शुरुआती इसके अंदर ये भी आया है कि कुछ चंडीगढ़ के भी अकाउंट शायद इसके अंदर है, चंडीगढ़ प्रशासन के. तो वो अभी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि फिगर्स इतनी मैसिव हैं, इसके अंदर समय लगेगा. उसके उपरांत
हम फाइनल चीज पे आ पाएंगे। स्वास्तिक देश कंपनी किस चीज की है, मतलब क्या ये शेयर होल्डिंग है, क्या मतलब क्या काम पैसे करती है? के लिए शेयर उसकी डिटेल्स अभी आपको गंगाराम जी बताएंगे। सर एक सवाल है, जैसे बैंक ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि 4 लोग जो थे उन्होंने सस्पेंड भी कर दिए थे, इन्वेस्टिगेशन में भी शामिल हो गए, तो वो क्या गिरफ्तारी उनकी हो पाएगी? देखिए ऐसा है जी कि आईडीएफसी बैंक इसके अंदर जो जहां तक अभी तक मैं समझ पाया हूं, वो इस मुकदमे के अंदर कंप्लेनेंट बनना चाहते थे। जांच हरियाणा सरकार के एक विभाग ने करी और इसके ऊपर पूरी गहराई से जाया जा रहा था। तसल्ली करनी पड़ती है किसी भी बैंक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए, उससे पहले जांच होती है। इस जांच के दौरान बैंक को पता चला, तो बैंक मुकदमा अपनी तरफ से दर्ज करवाना चाह रहा था कंप्लेनेंट बन के। उन्होंने चंडीगढ़ में भी अप्रोच किया और उन्होंने मुंबई में भी अप्रोच किया, लेकिन पैसा हरियाणा सरकार का है जो मरा हुआ है। तो हमने दोनों जगह पे पहले ही बात कर ली थी कि मुकदमा हम यहां पर दर्ज कर रहे हैं, और क्योंकि अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो लाइकली यहीं से हुआ होगा जहां पे हमारे हरियाणा सरकार के दफ्तर थे, सर एक जिनको उन्होंने कहा है। ये उनकी असेसमेंट है। निश्चित तौर पे वो 4 नहीं, जितने भी होंगे वो सभी को गिरफ्तार किया जाए। सर ये तो स्वास्तिक जो कंपनी आप बता रहे हो उसके अकाउंट में डाला गया, तो क्या उनके अकाउंट फ्रीज किए गए हैं? उनके देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो भी चीजें हमें शुरुआती दौर में, क्योंकि कल रात ही अभी गुजरी है, सामने आई हैं, उसे क्रॉस वेरीफाई किए बगैर हम आपको नहीं बता पाएंगे। शुरुआती दौर में इतना जरूर कह दूं कि फ्रीजिंग वाली कार्रवाई अकाउंट्स की, और शुरू में हमें यह डर भी था कि शायद जो मेन एक्यूज है रिभव ऋषि, इसके बाहर जाने की भी 1-2 वीडियोस थी, तो हमने एलओसी वगैरह भी जारी करवा दी थी सभी एयरपोर्ट्स पे। लेकिन डिटेल्स जब तक चेक होंगी जी, उसके उपरांत आपको सारी चीजें शेयर की जा सकेंगी। अगर कोई स्पेसिफिक चीज है तो ये सर एक ये सरकारी विभागों से 300 करोड़ गया है, वो हरियाणा गवर्नमेंट का गया होगा ना अकाउंट से? जी टोटल है जी। ये इसके अंदर कुछ देखिए शुरुआती चीजों में ये आई है जांच में कि ज्यादातर हरियाणा सरकार का है, कुछ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के भी अकाउंट्स हैं, कुछ, हालांकि उनकी मात्रा कम है लेकिन वो भी निकले। सर सरकारी विभागों से भी कोई रिकॉर्ड वगैरह लिया गया या पूछा गया कि आपने कैसे परमिशन ली बैंक खातों में, प्राइवेट बैंकों में खाते खुलवाने के? मैंने आपको कहा जी, अभी मेरे को सिर्फ 1 दिन हुआ है, ये जांच लंबी चलेगी। इसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। हमें सबसे एक एक करके पूछना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम करते हैं या किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं वो जुडिशियरी के अंदर चैलेंज हो सकता है। तो इसलिए क्या सर डिपार्टमेंट विजिलेंस के कार्यालय से हमारे को पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने पंचायत डिपार्टमेंट की एक करी हुई इंक्वायरी, जिसके अंदर सरकारी फंड्स का गबन दिख रहा था, वो जांच हमारे को एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश प्राप्त हुआ हरियाणा सरकार से, और उसके ऊपर मुकदमा नंबर 4 यहां पंचकूला में जो हमारा पुलिस स्टेशन है उसके अंदर किया गया। उस मुकदमे को दर्ज करने के उपरांत एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसके ओवरऑल सुपरविजन श्री गंगाराम पुनिया आईपीएस, जिनके पास एसपी पंचकूला का चार्ज है, इनके अधीन दी गई। और इन्होंने बहुत अच्छा कार्य करते हुए तकरीबन 24 घंटे के अंदर या थोड़ा सा ज्यादा, 1 आधे दिन के अंदर ही, जो इसके अंदर मेन 2 मुलजिम थे, जिनका नाम रिभव ऋषि है और अभय है। बैंक से जब हमने पता किया तो ये रिभव ऋषि पंचकूला का रहने वाला है और सेक्टर 32 की जो ब्रांच है उसके अंदर तकरीबन 6 महीने पहले इसने वहां से नौकरी छोड़ी थी और ये उस ब्रांच का हेड था। इसी प्रकार से जो अभय है, ये तकरीबन अगस्त के अंदर, अगस्त या सितंबर में इसने भी वहां से जॉब छोड़ी। ये वहां पे शायद रिलेशनशिप मैनेजर था, दोनों अच्छे पद पर आसीन थे। तो आईडीएफसी की सीनियर मैनेजमेंट ने इमीडिएटली ऊपर के लेवल पे अपनी कंप्लायंस दिखाते हुए सरकार का जो धन है, जो सरकारी फंड्स में गबन की बात आई थी, पेंडिंग द इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने वो पैसा गवर्नमेंट को रिटर्न कर दिया है। The Rajasthan government, amending the 30-year-old provision, has cleared the amendment bills to remove the 2 children norm to contest Panchayat Raj and urban local body elections. These bills will be introduced in the current session of the budget session of the Legislative Assembly. The Law and Parliamentary Affairs Minister Jogaram Patel said that the Cabinet has approved the Rajasthan Panchayati Raj Amendment Bill 2026 and the Rajasthan Municipal Amendment Bill 2026. These amendments will allow individuals with more than 2 children to contest Panchayat and urban body elections.
हटा लिया गया, क्या निर्णय है पूरे बताएं। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 19 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 में प्रावधान थे और प्रावधान है कि जिस व्यक्ति के 2 या उससे अधिक संतान है, 2 से अधिक संतान, 2 तक तो अलग हुए, 2 से अधिक संतान है, वो कोई भी पंचायत राज या नगरपालिका नगर निकायों का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। वर्तमान में ये महसूस किया गया, आमजन की आवाज आई, विधि विशेषज्ञों की राय आई, आर्थिक सलाहकारों की राय आई और अन्य प्रदेशों में एक प्रावधान का अध्ययन किया गया और जो चुनाव लड़ने वाले योग्यता रखने वाले व्यक्ति है उनकी जो आवाज़ आई, उनकी जो मांग आई, उसका परीक्षण किया गया तो पाया गया कि अब इस प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। समाज में स्व प्रेरणा से जो जनसंख्या नियंत्रण हुआ है और जब ये कानून लाया गया तब 3.2 का रेशियो था और वर्तमान में ये मात्र 2 ही रह गया है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने महसूस किया कि जब समाज स्वयं ही स्व प्रेरणा से जनसंख्या नियंत्रण कर रहा है तो अब इस कानून की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए योग्य उम्मीदवारों को मात्र इस आधार पर चुनाव लड़ने से वंचित नहीं किया जा सकता कि उनके 2 से अधिक संतान है और इसीलिए ये प्रावधान आज लाया गया। लेकिन जोगाराम जी, सवाल कांग्रेस ये भी उठा रही है कि ये क्या संयोग है, या क्योंकि पिछले दिनों मोहन भागवत जी का बयान आया, हिंदुओं की घटती आबादी की चिंता जताया और अब 2 दिन पहले पुष्कर में जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है बागेश्वर धाम वाले, उन्होंने 4 संतानें हिंदुओं के होने की बात कही। उसके बाद आप ये कानून जो है उसमें संशोधन। देखो, हमारा कानून बने हुए बहुत लंबा अवधि हो गया है। वो बिल हमको कैबिनेट में लाना था और बिल बनने में अनेक वर्ष लगते हैं, अनेक दिन लगते हैं, समय लगता है, विधिक राय ली जाती है। इसीलिए माननीय शास्त्री जी ने कल जो बयान दिया उससे या अन्य किसी जनप्रतिनिधि ने, किसी राजनेता ने या किसी महान व्यक्ति ने बयान दिया, उससे इस बिल का कोई संबंध नहीं है। ये बिल तो लंबे समय से जो मांग की जा रही थी, आर्थिक विशेषज्ञों की मांग आ रही थी, विधि विशेषज्ञों की मांग आ रही थी, योग्य उम्मीदवारों की बार बार मांग आ रही थी, उन सबको मद्देनजर रखते हुए बिल लाने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। जनसंख्या नहीं बढ़ेगी? देखिए, जनसंख्या स्व प्रेरणा से हिंदुस्तान में और विशेषकर राजस्थान में जो एक संदेश गया है, लोग अब हम 2 हमारे 2 सिद्धांत पे नहीं, हम 2 हमारे 1, और ये जो संदेश हुआ है और स्व प्रेरणा से जनसंख्या नियंत्रण रुका है और ये धीरे धीरे और रुकेगा, इसलिए जनसंख्या बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। In political war words over the World AI Summit, the BJP has gone on the offensive. Samit Patra alleged that the Congress party is paying social media users to spread negativity. He claimed that people are being offered sums between rupees 25,000 and 1.5 lakh to create reels against the summit, and he says the proof of these messages is authentic and visible online. और जैसा आप जानते हैं, कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी ने एक सीरीज आरंभ किया था, कॉम्प्रोमाइज्ड गांधी परिवार, और आज उसी संदर्भ में हम उसे आगे बढ़ाएंगे। कभी कभी मुझे लगता है कि वी हैव गिवन अ लॉन्ग रोप टू द कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के असलियत को, कांग्रेस पार्टी के परिवार के असलियत को, परिवार ही कांग्रेस है, इसलिए नेहरू, इंदिरा, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इनके असलियत को जनता के समक्ष संपूर्ण रूप से बार बार रखना पड़ेगा, ताकि इनकी डायनास्टी कितनी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इनकी हालत कितनी कॉम्प्रोमाइज्ड है और इनके कॉम्प्रोमाइजेस के कारण भारतवर्ष को क्या सहना पड़ा है, क्या हानि हुई है, what losses has India taken upon itself because of the compromises of the dynasty of the Gandhi family, is something which we have to remind the Gen Z and the others in the country again and again. आज इसी कड़ी में कुछ विषय मैं आपके समक्ष रखूंगा, मगर सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वर्ल्ड एआई समिट हुई थी, आज हमने देखा कि उसके पीछे एक बहुत सोचा समझा प्लान्ड अरेंजमेंट था। सोशल मीडिया में भी हमने देखा कि रील्स चल रही है
और लोगों ने बकायदा ट्वीट करके रील्स के माध्यम से यह बताया है कि उन्हें कांग्रेस कार्यालय से और कांग्रेस के बड़े लोगों का मैसेज आया था कि यदि आप वर्ल्ड एआई समिट के खिलाफ ट्वीट करेंगे या कोई रील बनाएंगे तो आपको 25,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1.5 लाख तक आपको पैसा दिया जाएगा। अनेकों ऐसे उदाहरण हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं और ये ऑथेंटिक है क्योंकि बकायदा मैसेजेस डालकर दिखाए गए हैं। मैं भी मीडिया में देख रहा था, कई चैनल्स इसे चला रहे हैं। तो ये जो राहुल गांधी का पूरा एक प्रिपेयर्डनेस था भारतवर्ष को नीचा दिखाने में, और जो स्लोगन वो कॉम्प्रोमाइज्ड का यूज कर रहे हैं, आज हम बताना चाहते हैं कि वास्तविक रूप में कॉम्प्रोमाइज्ड कौन है। इस सिलसिले में, पूरे इस कड़ी में सर्वप्रथम नेहरू जी का नाम आता है। हाउ नेहरू वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड हाउ द कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ नेहरू कॉम्प्रोमाइज्ड आवर कंट्री, आज इस विषय में कहूंगा मैं। चचा नेहरू बोला जाता था उनको, चचा नेहरू, ही वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड नेहरू। चचा कॉम्प्रोमाइज्ड, वो चचा नेहरू नहीं थे, वो चचा कॉम्प्रोमाइज्ड थे। मुझे लगता है आज से उनको चचा कॉम्प्रोमाइज्ड के नाम से ही बोलना चाहिए। जब चचा ही कॉम्प्रोमाइज्ड होगा तो क्या देश का हाल होगा, आप सोचिए जरा। अब ये चचा कॉम्प्रोमाइज की पूरी कच्ची चिट्ठी है, बहुत बड़ी चिट्ठी है, कच्ची चिट्ठी। मैं प्रयास करता हूं कि एक एक करके इस विषय को रखूंगा और आप सब भी देखेंगे। और ये चचा कॉम्प्रोमाइज्ड की जो गलतियां थी, ये कोई नीतिगत गलतियां अनइंटेंशनली उनसे हो गई थी, ऐसा नहीं है। ये गलतियां सोच समझ करके, जानबूझ करके किया गया था ताकि देश कॉम्प्रोमाइज्ड हो। मैं पहला आरोप जो मीडिया के समक्ष और मीडिया के माध्यम से देश के समक्ष रखना चाहता हूं चचा कॉम्प्रोमाइज्ड के बारे में, वह है कि चचा कॉम्प्रोमाइज्ड के सचिवालय में, नेहरू के सचिवालय में सीआईए का इतना पैठ था कि उनके जो विशेष सहायक या विशेष सचिव थे, जिनका नाम M.O. मथाई था, M.O. मथाई को अमेरिकी एजेंट के नाम से बुलाया जाता था। और 60 के दशक में, 1960 के दशक में KGB, जो रशिया की एजेंसी है, KGB के एजेंसीज के एजेंट भी चचा कॉम्प्रोमाइज्ड के ऑफिस में मौजूद थे। तो चाहे वो M.O. मथाई हो, चाहे KGB के एजेंट्स हो, CIA और KGB का दबदबा चचा नेहरू के ऑफिस पे था। और इन द 60s and 70s it used to be said, in fact it used to be said about Nehru's regime that any document that the foreign dispensation needed was readily available for US and for Russia. That was the situation, grim situation I would say, and that was the compromise that Nehru did with the security of this country. सवाल है कि राष्ट्रीय सुरक्षा इतनी खोखली क्यों बनाई गई कि गुप्त दस्तावेज देश के विदेशी हाथों में सौंप दिया जाता था। On the Delhi Police Shimla Police Row, Himachal Pradesh Minister Dhaniram Shandil said they should have cooperated with the Himachal Pradesh Police. The whole thing should have been done with more maturity. फिर मिडनाइट में ट्रांजिट के लिए अप्लाई किया, फिर एक बार फिर से रोका। ये पूरा मामला जो है, आप किस तरह से देखते हैं? बीइंग अ सीनियर मिनिस्टर, वाज इट एप्रोप्रिएट और हिमाचल पुलिस ने ऐसा क्यों किया? देखिए, मैं तो खुद एक आर्म्ड फोर्सेस से संबंधित रहा हूं एंड डिसिप्लिन हैज रिमेन्ड बेसिकली आवर credo or sort of, established practices of law. They are always followed by the police. And I think interstate arrests are also the norms of the police force, or what they should have followed, the established practices for their professionalism and
when FI was registered in Chiragaon police station, as per my information. So I think those people, there was, and I don't think our police had denied taking them away, those 2 or 3 people which they have arrested. So somehow, I don't know where the thing went wrong, but once a transit demand was given by additional CGM during last night, that's what I'm told, about midnight or whatever time. So I don't think we were opposing the taking away of these 3 people, probably those involved. So it seems that somehow misplaced sort of action by Delhi police. On the part of Delhi police. They should not have, they should have rather cooperated with the Himachal Pradesh police, and the matter would have ended there. So that's what I feel. But despite this transit remand was given, they were detained again. तो उसको किस तरह से देखते हैं? हालांकि जो police officer local were saying we are not stopping you to go there. They wanted a cooperation in FIR, as you mentioned, registered in Chiragaon. I think when our police force was not opposing the taking away of these people, as they were thinking properly, although in a federal system, if certain things are opposed, this matter should have been really speaking limited to that very function. And because we were all available in Delhi, the entire cabinet was in Delhi then, I remember. And matter came from the leadership also to our notice that some of the youth Congress people had, they had, given in that some sort of exposition and some sort of reaction, resentment, which of course could have been easily handled at that very level. And there should not have been really a need to ask for a transit demand as it had to be given now. And it became an interstate matter. If asking frankly my opinion as a myself forces officer, we should always settle certain things at, they say nip the evil in the bud. If there is something which a youth or young population has done, some senior officer should have intervened and the matter could have ended there itself. And there was no need for making it so much public. Is Himachal Police issuing notices to these officers of the Delhi Police, those who were detained yesterday night? Yeah, well, of course, when the matter came to that extent that they had to give the notices, well, I think at the spur of the moment, probably what else the police could have done, they could have. They wanted their support in investigation. They wanted their support in investigation. They should have investigated the matter and whatever is as per law, because there are so many judgments on such cases. It's an interstate matter, and interstate sort of arrest also always happens. There's nothing very uncommon in this. It should have been handled with a little more maturity. That's what I personally feel. And that was all for this hour's bulletin. For more news and updates, stay tuned to Hornbill TV. Goodbye.